everyone, my name is Devin Panjan. Today we will be starting with episode number 2, that is about present tense. Please see to it you do watch episode number 1 because that episode is the base of episode number 2. Start with present tense. In present tense there are total 4 types. First is simple present tense, second is present perfect tense, third is present continuous tense, and fourth is present perfect continuous tense. So first we will start with the first type of present tense, that is simple present tense. Simple present tense में आपको यहाँ पे मैंने 2 formulas दिया हुआ है, right? First is if your question is starting with, अगर एग्जाम में टेंस का क्वेश्चन आया and if it is starting with I, we, you, they. Clear है? If your question is starting with I, we, you, they, you have to use the formula V1. आपको क्या यूज करना है? V1. याद आया? In the first episode types of verb हमने किया था. So V1 is known as the simple form of the verb, right? If your question is not starting with, exam में सर question जो है ना उसमें it is not starting with I, we, you, they. ठीक है? So it is starting with the mountain, the dog, right? या she, he, okay? या किसी का भी नाम हो, clear है? But I, we, you, they से start नहीं हो रहा है, कहाँ पे? In the question. So if your question is not starting with I, we, you, they, आपका फॉर्मूला रहेगा V1S. अब सर ये S क्या है? एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल ये eat जो है, that is what V1. But अगर मैं इसे S कर दूं, that will become what? Eats. Understood? वैसे ही समझो एग्जाम्पल teach है, right? उसका क्या बनेगा? Yes, teaches. Understood? Right? V1S, ये V1 है and it is ending with what? S. Clear है? Right? मैं वापस से repeat कर रहा हूँ. If your question is starting with I, we, you, they, you have to use the verb V1. What do you have to use? The verb V1. If my question is not starting with I, we, you, they, आपका formula जो आपको use करना है that will be V1S. So ये formulas को deeply understand करने के लिए यहाँ पे हमने 4 examples लिए हुए हैं, right? The first example is they were watching movie. They were watching movie. Okay. जो जैसे मैंने आपको बताया, right? You have to see in the question. If your question is starting with I, we, you, they. हाँ सर, मेरा question जो है वो start हो रहा है किससे? They से. So आपका formula क्या होना चाहिए? V1, right? So यहाँ पे first काम हमें क्या करना है, right? हमें verb find करना है. So what is my verb here? Watching. क्लियर हुआ, right? अब watching का V1 क्या होगा? Watch. So they watch movie. Simple. बन गया आंसर. Let's see the second example. I am writing a letter. जल्दी बताओ यहाँ पे verb क्या होगा? Writing. Okay. The question is starting with what? I. So if my question is starting with I, we, you, they, my verb will be V1. So writing का V1 क्या होगा? Write. I write a letter. And the answer is complete. Let's move to the third one. Rohan had eaten his food. Rohan had eaten his food. क्या देखना है? क्वेश्चन में I, we, you, they से स्टार्ट हो रहा है मेरा क्वेश्चन. नहीं सर, यहाँ पे तो रोहन है. ओके, सो क्या करना है? If I, we, you, they से if my question is not starting, you have to use what? V1S. फिर से verb ढूंढेंगे. verb क्या है यहाँ पे? Eaten. Eaten का V1 क्या होगा? Eat. पर हमें किसमें चाहिए? V1S में. So it will be Rohan eats his food. Complete. She will be going for lunch. So यहाँ पे the question is starting with what? I, we, you, they? No sir, it is starting with she. So यहाँ पे मेरा verb क्या है? Going. So going का V1S क्या बनेगा? याद है ना? If my verb is not starting with I, we, you, they, हमें क्या यूज करना है फॉर्मूला V1S.
सो गोइंग है, सो उसका V1 में S क्या बनेगा, goes. तो she goes for lunch. And here we have completed with a simple present tense. So हमने यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टाइप था सिंपल प्रेजेंट टेंस वो हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट. गोइंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है हैव/हैव प्लस V3. अब सर एग्जाम में हैज एंड हैव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर वी हैव टू यूज हैज और वेदर वी हैव टू यूज हैव, राइट. तो सिंपल यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है. इफ अ क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद सिंगुलर, if a question is starting with singular, you have to use has. If a question is starting with I, you or plural form में, right, you have to use have. And याद रखना आपको जो verb का form रखना है in the answer, it should be in V3 form. It should be in V3 form. वापस से मैं repeat कर रहा हूँ. In present perfect tense, in present perfect tense, the formula is has/have plus V3. Has is used for what? Singular. Have is used for I, you and plural form. And the verb जो हमें answer में right use करना है, the verb will be in V3 form, right. इसके word के लास्ट में आता है ed, ent, ntn आता है, right. वो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू राइट डिटेल में समझ में आ जाएगा, राइट आपको. सो टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से, राइट, यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे गए, राइट. इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये फॉर्मूलाज को यूज करना है, ठीक है. द मैजिक फॉर्मूलाज आपको किस तरह से यूज करने हैं आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है आई वाज प्लेइंग गिटार. तो फॉर्मल्स काम जो आपको करना है, यू हैव टू फाइंड आउट यहाँ पे वर्ब क्या है एंड यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, वेदर माय क्वेश्चन इज सिंगुलर, प्लूरल, आई से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को यूज करना है हैज एंड हैव. अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पे सर मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आई से एंड द वर्ब इज व्हाट, प्लेइंग. सो इफ माय क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद आई, सो मैं क्या यूज करता हूँ, हैव. सो आई हैव, ये लिख दिया आपने, हैव लिख दिया. फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है आपको, V3. सो प्लेइंग इज योर वर्ब, राइट. उसका V3 फॉर्म क्या बनेगा, played. The word will end with ed. I have played. What? Guitar. Simple answer is ready. Second example. We are going for a movie. क्या करना है फॉर्मल्स का, वर्ब ढूंढना है. Verb is what? Going. Understood? Right? अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हैज एंड हैव में से मैं क्या यूज करूंगा, राइट. सो माय क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद व्हाट, वी. अब वी किसके लिए यूज किया था, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल. सो प्लूरल रहेगा तो हमें क्या यूज करना है, हैव. सो वी हैव गोइंग का जो है वो V3 फॉर्म क्या बनेगा, गॉन. वी हैव गॉन फॉर अ मूवी. Understood everyone? Next, Adi gave his car, right? So forms come, हमें verb ढूंढना है. अब आदि जो है is a person name, is singular, right? तो singular होगा तो हमें क्या यूज करना है, has. So Adil has. सर has यूज कर लिया सर. फिर verb का कौन सा फॉर्म, V3 फॉर्म. gave का V3 फॉर्म will be given. So given is car. Here the answer is completed. Moving forward to the fourth example, the wall broke into parts. फिर से verb is broke the wall. अब the wall जो है वो singular है, walls नहीं है, right? तो क्या यूज करोगे, has. So the wall has. अब broke जो है उसका V3 फॉर्म क्या बनेगा, broken. break, broke, broken, breaking. So V3 फॉर्म क्या बन रहा है, broken. broken into so यहां पे हमने आंसर्स में ये सारे चेंजेस किए हुए हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस formulas. Okay, so moving forward to the third type, that is present continuous tense.
कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, राइट? तो एग्जामिनर कभी-कभी क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में कि रीराइट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, याद रखना कंटीन्यूअस ही प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव ही कंटीन्यूअस है, राइट? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है सर? इज एम आर प्लस V4। याद रखना आपको यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, राइट, इन द आंसर इट शुड बी इन V4 फॉर्म। अब सर इज हम किसके लिए यूज करेंगे, एम किसके लिए यूज करेंगे, आर किसके लिए यूज करेंगे? तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पे मैंने पूरा सॉर्ट आउट करके रख दिया है। इज यूज फॉर सिंगुलर। इफ योर क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद आई, क्या यूज करना है आपको? एम। इफ योर क्वेश्चन होल्ड्स यू, अगर आपका क्वेश्चन जो है, राइट, वो स्टार्ट हो रहा है यू से, सो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे? आर। इफ योर क्वेश्चन होल्ड्स एनी प्लूरल वर्ड्स, तो आपको क्या यूज करना है? आर। And the verb in the answer you should use is V4. याद आया? V4 is verb plus ing, right? Types of verb in the first episode, right? वो देख लेना आपको। यहाँ पे इस फॉर्मूलाज को, ठीक है, हम किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये आपको यहाँ पे एग्जांपल्स पे पता चल जाएगा, राइट? फर्स्ट एग्जांपल इज आई वाज प्लेइंग गिटार। तो फॉरमोस्ट काम, तो सबसे पहला हमें काम करना है, दैट इज फाइंडिंग द वर्ब इन द क्वेश्चन। सो माय वर्ब इज व्हाट? प्लेइंग। Here the question starting with what? I. Clear है? Right? So if my question is starting with I, so मैं आंसर में क्या यूज करूंगा? am. Correct? So यहाँ पे लिखूंगा मैं I. क्या यूज करूंगा? am. यहाँ पे am लिख दिया मैंने। फिर am के बाद, right, कौन सा वर्ड यूज करना है मुझे? V4. Right? So यहाँ पे playing जो है वो already it is in what? V4 form. So I am playing guitar. यहां पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। Moving forward to the next example, they will be sleeping at room. So यहां पे मेरा वर्ब क्या बनेगा? sleeping. Understood? they है, so बहुत लोग है सर, so it is which word? plural word. तो plural जब होगा तो मुझे क्या यूज करना है यहाँ पे? are. so they आर यूज कर लिया, दे आर। अब मेरा वर्ब कौन से फॉर्म में होना चाहिए? V4 फॉर्म। बट सर यहाँ पे ऑलरेडी द वर्ब इज इन विच? V4 फॉर्म। ठीक है, सो हम क्या यूज करेंगे? स्लीपिंग एट रूम। दे आर स्लीपिंग एट रूम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, सरिता कुक्ड अ नाइस मील। सो यहां पे वर्ब क्या बनेगा? cooked. सरिता सिंगुलर या प्लूरल है? तो सिंगुलर है, राइट? तो क्या यूज करूंगा मैं? is. तो सरिता is. cooked वर्ड जो है उसका V4 फॉर्म क्या बनेगा? cooking. सरिता is cooking a nice meal. so यहां पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लास्ट एग्जांपल, the bird flew westward. The birds flew westward. So यहाँ पे the birds जो है, birds एक सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है? So क्या बनेगा वो? प्लूरल। तो क्या यूज करूंगा मैं? are. So the birds are. लिखा मैंने। यहाँ पे verb क्या है? flew, right? तो उसका ing फॉर्म, V4 फॉर्म क्या बनेगा? flying. So the birds are flying westward. Understood? So इस तरह से हमें ये सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है बाय सीइंग कि वेदर इट इज सिंगुलर, प्लूरल, आई स्टार्टिंग में, यू स्टार्टिंग में, उस हिसाब से आपको ये इज, एम, आर को यूज करना है। अंडरस्टूड? एंड द वर्ब इट शुड बी इन विच फॉर्म? V4 फॉर्म इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। So moving forward to the last type of present tense, that is present perfect continuous tense, right? So continuous को एग्जाम में कभी जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं कि रीराइट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रोग्रेसिव ही कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस इज प्रोग्रेसिव। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो है हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस V4। हैज हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। हैव हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? इफ माय क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद आई, इफ माय क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद यू,
एंड इफ माय क्वेश्चन होल्ड्स प्लूरल वर्ड्स, सो हम क्या यूज करेंगे? हैव। फिर सर इन दोनों में से कोई एक सिंगल वर्ड हमें यूज करना है। क्लियर हुआ? हैज किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए, एंड हैव किसके लिए होगा? आई, यू एंड प्लूरल। इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर लिया मैंने, राइट? देन हमें क्या यूज करना है? बीन। देन हमें क्या यूज करना है? वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए आंसर में? V4 फॉर्म। अंडरस्टूड? ओके, सो ये फॉर्मूलास को कैसे हम प्लेस करेंगे, राइट? ये हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, राइट? सो ही प्लेस गिटार, यहां पे जो मेरा वर्ब है वो क्या है? प्लेस। अंडरस्टूड? और यहां पे जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ही से, राइट? सो ही जो है वो क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, राइट? ही हम किसके यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। सो ही जो है, राइट, वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज। सो ही हैज, हैज यूज कर लिया मैंने। उसके बाद हमें क्या यूज करना है? बीन, राइट? सो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? बीन। फिर सर आपका जो वर्ब है, राइट, जो वर्ब है वो किस में होना चाहिए? V4 फॉर्म में। सो मेरा यहाँ पे वर्ब जो है इट इज इन V1S फॉर्म, प्लेस, राइट? सो प्ले का V4 फॉर्म क्या बनेगा? प्लेइंग, राइट? एंड देन कौन सा वर्ड है? गिटार, एंड हियर कंप्लीट्स योर आंसर। ही हैज बीन प्लेइंग गिटार। अंडरस्टूड? किस तरह से आपको ये फॉर्मूलास को अप्लाई करना है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड एग्जांपल, सरिता कुक्ड अ नाइस मील। सरिता कुक्ड अ नाइस मील। ओके, फिर से यहाँ पे वर्ब क्या है? कुक्ड। ओके, सरिता क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर। सो व्हाट आई विल यूज? सरिता, राइट? क्या यूज करेंगे? हैज, राइट? हैज यूज करने के बाद हमें क्या यूज करना है? बीन। फिर से वर्ब का कौन सा फॉर्म? V4 फॉर्म। कुक्ड का V4 फॉर्म विल बी cooking a nice meal. Okay, so the answer will be Sarita has been cooking a nice meal. Here completes your answer. Moving forward to the third example, the thief was running very fast. The thief was running very fast. So यहाँ पे the thief जो है वो क्या है? Singular है, right? The thief here is singular, right? So हम यहाँ पे क्या करेंगे? The thief लिख दिया, singular तो क्या यूज करेंगे? Has। फिर क्या यूज करेंगे? Been, right? And यहाँ पे जो verb है वो already कौन से फॉर्म में? Running, right? Means V4 फॉर्म में। So running very fast. Understood? Right? ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा कि किस तरह से ये फॉर्मूलास को आपको अप्लाई करें। So the fourth example is they are laughing at the joker, right? So यहाँ पे हमें verb find करना है। verb क्या बनेगा? laughing। अब they जो है that is what? singular plural? both लोग आंसर है ना? So it will be plural, right? So if my question is in plural form, what I will use? have. So यहाँ पे मैं लिखूंगा they have लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या यूज करना है? been, right? and the verb already in the question कौन से फॉर्म में? V4 फॉर्म में। तो उसको V4 फॉर्म में हम रखेंगे laughing at the joker, right? they have been laughing at the joker. So in this way, right, you have to use all the formulas, right? जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के थे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के थे, जो भी मैंने आपको मैजिक फॉर्मूलाज जो आपको मैंने दिया है, ठीक है, यू हैव टू यूज एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने आपको बताया है, एंड फॉर श्योर आई गारंटी टू यू, ठीक है, राइट, आपका आंसर आएगा ही, राइट? बस सी टू इट। आप एपिसोड नंबर 1 जो है वो आप थरीली देखो, राइट? तो ही आपको इसका ये सारे जो फॉर्मूलाज है, इसकी यूटिलाइजेशंस कैसे करने, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है, वो आपको समझ में आए। थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग दिस एपिसोड, right? That is of present tense. Here we have completed with all our 4 present tenses, right? For next video that will be of past tense, right? ऐसे ही हम लोग with logic and with formulas से grammar solve करेंगे, right? Till then, please be in touch. For that you have to subscribe our channel, right? Thank you everyone. Bye.